A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Now today we started our new chapter, lesson number 21. Lesson name is Questions and Answers. Students, remember one thing, this worksheet will be submitted on a given date. आपकी ये वर्कशीट सबमिट होनी है. वर्कशीट के नीचे दी गई सबमिशन डेट में आपको ये वर्कशीट आपको सबमिट करनी है. ओके, नाउ आफ्टर दैट राइट डाउन द डेट एंड डे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लास्ट लेसन, lesson 21. After that our grammar syllabus is completed. Okay, so now students, in this worksheet I explain you today about the questions and answers. Students, in our previous worksheet, in our science worksheet, we always saw that there are some questions and we write down their answers. पहले आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन आप लोग क्या करते हो, आंसर्स लिखते हो. सेम एज इट इज दिस लेसन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, लुक एट द पिक्चर. आप पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, गर्ल बॉय आपस में क्या कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टर दैट लुक एट द पिक्चर्स बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन. फर्स्ट देखिए क्वेश्चन 1 में बॉय क्या पूछ रहा है गर्ल से, व्हाट इज योर नेम. Then the girl is asking, my name is Reena. Then the boy is asking, how old are you? Girl is asking, I am 10 years old. Then again boy is asking the question, what game do you like to play? The girl is saying, I like to play football. Okay, in this way some questions, जो क्वेश्चंस हैं जो बॉय आस्क कर रहा है उसके आंसर्स गर्ल दे रही है. ठीक है, दीज आर आर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. दीज आर सो इजी, हाउ वी मेड क्वेश्चंस, हाउ वी मेक द आंसर्स. ठीक है, जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका हमें आंसर किस तरीके से देना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ इसी से को रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको शो करती हूँ. Another way of framing questions is by using the helping verbs do and be. For example, do you like reading? We add the verb does for a singular subject. For example, does Rupal walk to school? We add the verb do for a plural subject and for pronouns I and you. For example, do you walk to school? We use the verb did with singular and plural subjects to form past tense. For example, did Julie invite Vinod to the party? Please note that when a question is framed with the helping verb to do, the main verb is always in the base form. We use the verb is with a singular subject or with a plural subject and the pronoun you. For example, is Julie a good dancer? Are Nikki and Ricky coming to the party? For the singular pronoun I, we add the verb am. With is, am and are, the form of the main verb remains the same. For example, am I coming to the market too? So now student, in this way we make the questions. Okay, so now I explain you your worksheet. Look at our worksheet students. This is our worksheet. Now
Question number 1 is here. Answer these questions. Number 1, how are you? So we answer, I am fine. Second is, how old are you? I am 10 years old, 6-year-olds, 8-year-olds, as you wish. You have to be write down the same answers like that. Now third is, where do you live? I live in Julie Grant. I live in Dehradun. Number 4, what are you doing? I doing my homework, like that way. Okay. Now the question number 2, turn the following statement into questions. आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. Number 1, yes, he is well. Now how we convert it in a question? We write it down. Is he well? ठीक है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे. ठीक है, is he well? Then the answer is yes, he is well. Now question number 2, there are 7 days in a week. We form the questions of this answer is, how many days are there in a week? Third is, I am fine. Question is, how are you? Next, fourth, my name is Satish. What is your name? Okay, in this way we turn these answers into the questions. In the above question, we only write it down the answers of these questions. So now students, with the help of the video, we know that how we form the questions. ठीक है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हमें पहले लाना होता है. ठीक है, इन दिस वे वी फॉर्म द क्वेश्चंस. नाउ एट द डाउन देयर इज अ रिवीजन वर्कशीट. ये जो है हमारी एक रिवीजन वर्कशीट है. लुक एट द पिक्चर एंड राइट 1 पैराग्राफ ऑन इट. आपको पिक्चर शो करी हुई है तो पिक्चर को देख के आपको क्या लिखना है, पिक्चर के ऊपर 1 पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, इन दिस वे दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम ऑल्सो. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि आपको पिक्चर देखने को मिलेगी और पिक्चर से रिलेटेड आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है. तो व्हाट्स अ पैराग्राफ राइटिंग? इन अ पैराग्राफ राइटिंग यू नॉट नीड टू राइट इट डाउन एनी नंबर 1 2 3, इस तरीके से नंबर नहीं डालेंगे आप. ओनली स्टार्ट विद द पैरा. ओके, जस्ट लाइन जब आपकी फुल स्टॉप के बाद एंड होती है तो आप वहीं से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देते हो इन अ पैराग्राफ. ओके, लाइक दैट वी शो. फर्स्ट जो हम पिक्चर में शो हो रहे हैं, हमारे पास पिक्चर में शो हो रहा है वो क्या है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. देयर आर सो मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग. सम आर साइकिलिंग. ठीक है, सम आर प्लेइंग फुटबॉल, some are playing rings. Okay, this way one of the boy holding in her hands so many colorful balloons. In this way you form the 1 paragraph based on the picture. पिक्चर में जो जो हमें शो हो रहा है, जो जो हमें विजिबल है, उस चीज़ के बारे में हमें सेंटेंस राइट इट डाउन करने हैं. ठीक है, सेंटेंस राइट इट डाउन करते रहेंगे और उसको एक 1 पैरा हम लोग बनाएंगे. वी आर ऑल्सो राइट इट डाउन हेयर. आई लव टू प्ले इन अ पार्क. ठीक है, मुझे पार्क में खेलना बहुत पसंद है. वी हैव जस्ट राइट डाउन अबाउट द पार्क ऑल्सो. अ पार्क इज एन ओपन प्लेस इन अ सिटी और अ टाउन फॉर अ नेचर. देयर आर ऑफ्टन ट्रीज, benches, statues and ponds in a park. Some parks built in a big cities are very large. These can have picnic areas. Okay, it is a most attractive place. तो हमें इस टाइप से पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. So many describing words we added here. Okay, now students, in our question number 2, read the passage carefully and answers the following questions.
आपको पैसेज रीड करना है। आफ्टर दैट पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे आस्क करे गए हैं उनको आंसर्स करना है, ठीक है। फर्स्ट वी रीड द पैसेज। दीज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड दे आर सो ईजी। बिकॉज ऑफ दैट हमें इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वी हैव अ पैसेज, वी रीड इट एंड आंसर इट, ओके। तो आपको ये लर्न ही नहीं करना होता है। इन ग्रामर पोर्शन यू हैव कंटेन मोर एंड मोर मार्क्स आप कंज्यूम कर सकते हो अपने ग्रामर पोर्शन में। देखो, आपको डिस्क्राइब करना है पिक्चर को अपने ओन वर्ड्स में, आपको पैसेज रीड करके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसेज है पहले मैं इसको रीड करूँगी। मैरी हैड अ डॉल, शी लाइक इट वेरी मच। द डॉल हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ बैंड्स एंड ड्रेसेस। It also has a brown purse. Mary calls her doll Stella. Stella has golden hairs and green sandals. Mary always keeps Stella with her. So now students, in this passage, ये पैसेज पहले हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैरी के पास क्या है? डॉल है जिसे कि वो बहुत ही पसंद करती है। डॉल के पास क्या है? अपना एक खुद का कंप्लीट सेट है। बैंड्स उसके पास हैं, ड्रेसेस उसके पास हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ अ ब्राउन पर्स, और मैरी की डॉल के पास ब्राउन पर्स भी है। मैरी कॉल हर डॉल स्टेला। मैरी अपने डॉल का जो नाम है, मैरी ने अपनी डॉल को एक नाम दिया है, उसका नाम रखा है उसने स्टेला। स्टेला हैज़ गोल्डन हेयर्स एंड ग्रीन सैंडल्स। स्टेला जो मैरी की डॉल है उसके जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं? गोल्डन है, और उसकी सैंडल्स जो है वो ग्रीन है। मैरी ऑलवेज कीप स्टेला विद हर। मैरी हमेशा स्टेला को अपने साथ रखती है। स्टेला कौन है? उसकी डॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर ए इज आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ मैरीज डॉल। मैरी की डॉल का नेम क्या है? तो द नेम ऑफ मैरी डॉल इज स्टेला। स्टेला उसने रखा था अपनी डॉल का नेम। बी इज व्हाई शी लाइक इट वेरी मच। वो उसको क्यों पसंद करती थी? देखो, व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड बाय वाई, जब क्वेश्चन आपका वाई से फॉर्म्ड होता है, इट्स अप टू बेस यू। आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, इसके आउन वर्ड्स आप अपने आप लिखोगे, ठीक है। वाई, क्यों पसंद करती है? बिकॉज द डॉल हैज कंप्लीट सेट ऑफ बैंड्स एंड ड्रेसेस, ठीक है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट सेट है। वो हमेशा उसको अपने पास रखना चाहती है, वो हमेशा उसको अपने पास रखती है, इसलिए वो उसको अच्छा मानती है। एज यू विश, जिस टाइप का आप आंसर दोगे वाई में वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। नाउ बी क्वेश्चन हेयर इज राइट एनी टू एग्जेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो वो आपको पैसेज से फाइंड आउट करने, लाइक दैट गोल्डन, ग्रीन, ठीक है, ब्राउन। इस तरीके से आपको पैसेज एग्जेक्टिव जो है वो आपको पैसेज से ही आपको मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ओनली 2 आपको राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड। वर्ड के प्लूरल फॉर्म लिखने हैं जो नीचे आपको वर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट इज बैंड, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ बैंड इज बैंड्स। सेकेंड इज ड्रेस, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ड्रेस इज ड्रेसेस, ठीक है। In this way you have to be complete your passage. Students, now अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन, जो हमारा लेसन 21 है, इट्स अ क्वेश्चन टैग्स, जिसमें कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करना है ये मैंने आपको एक वीडियो के हेल्प से समझाया है, और इसकी जो एक्सरसाइज है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज राइट डाउन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें आपको आंसर्स राइट डाउन करने हैं। देन 2 में आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, आंसर्स के, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आपको फॉर्म करने हैं। देन उसके नीचे जो हमारी रिवीजन वर्कशीट है ये आप रिवीजन वर्कशीट डालकर ही लिखेंगे। पिक्चर आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पिक्चर इज इन योर वर्कशीट, यू हैव टू बी डिस्क्राइब द पिक्चर। पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, अपनी खुद के ओन वर्ड्स होंगे, ठीक है। जो जो आपको पिक्चर में शोएबल हो रहा है, देयर आर मैनी ट्रीज, बर्ड्स आर फ्लोइंग ओवर द स्काई, ठीक है। इस तरीके से जो जो वर्ड्स, 1 boy is cycling, 1 boy is playing football, 2 boys are playing football,
ठीक है। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है इन योर पिक्चर कॉम्पोजिशन। ओके, नाउ पैसेज जो है, पैसेज भी आप अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपके आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑफ यू नो दैट आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल आने ही वाले हैं, डेट आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो आप इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care. I think next video is not coming, because of that our exams will be started from the next Thursday. ठीक है, तो अब वीडियोस जो हैं वो इतनी आपको नहीं आएंगी, लेकिन जो जूम क्लास है हमारी कल, उसमें हम क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो नाउ take care, bye and take care.